Titans Konkona winning the toss, deciding to bowl first against the likes of Syed Badi and Vinod Wilson. It will be Vinay Satarkar with the fluorescent cherry will be bowling the first delivery. Officials in this particular game, Sadgiri Naik. Sadgiri Naik along with Kunal Virnekar as the officials. All the scoring has been handled by Viraj Tendulkar. Viraj Tendulkar recently has got the big experience of KSPL. All over the news, KSPL. That very well organized tournament by the Karnataka Cricket Association. And now back in Goa. All these matches have been viewed live on YouTube through AB25 Sports Network. All in readiness, says the umpire. Here we go with the first delivery. Syed Badi on strike, facing Vinay Satarkar. Nicely bowled, darting back in, and will get a single. Slight inside edge onto the feet. Gets off the mark with that single. Syed Badi. This will be a good contest as Vinay Satarkar is very handy with the ball. Always very fruitful when he bowls the mandatory power play overs. Nicely played over covers. And by the time the fielder comes in, throws it back. Couple of runs taken. Slightly hesitant, that fielder, Rajat Komarpant. And straight away, he has been changed. He's been swapped from the extra cover region, in fact, the wideish long off, to mid on. Nicely bowled and gone. Thickish outside edge. And the experienced Vinod Wilson has to head back to the pavilion. As I've been talking about, Vinay Satarkar getting the big wickets in the earlier stages. And this time he has sent the very experienced Vinod Wilson back in the pavilion. He's gone for 2. It's 3 for 1. And Yasin Shingangutti. Three for 1. First over in progress in this batting of Desire 7 Sports Vasco. Nicely played. Rushed on to him. Good work there as well by Naresh. Dot delivery nevertheless. Pecked offside ring that Akhil. Then Naresh. Swing may be gone. Is he appealing for it? Umpire says no. Might have just the bat hitting the surface. You certainly heard the noise, but it was the bat hitting the ground.
Maybe sometimes when appeal is made, umpires get a bit tentative. Have I made any wrong decision or not? But umpire is very firm on this one, and the correct decision was made. Nowhere near the bat. Again, swing, missed. Dot delivery to end the over. Superb first over coming to an end. After completion of 1, it's 3. 3 for 1. After 1. Desire 7 Sports, Vasco. Change in bowling. It will be the tall Gaurav Sawant. 1 over, 3 runs, 1 wicket by Vinay Satarkar. The terrific start for the Kankona Titans. But the danger still prevails as big man Buddy is in the middle. 24 more deliveries left. You never know if he faces another 15-20. It will be like 50-60 runs that he scores. Doesn't shy away from hitting big maximums, getting the big boundaries whenever his team needs to. Nicely played. But straight to the field though. Will just be a single. That fielder at Beckett Square. Pretty fine. Especially for those kind of deliveries and shots. Single taken. Pulled away in the air, and that will be on the bounce for 4. Waited for it. Short delivery and nicely pulled away between the deep square leg and mid-wicket fence. Score moves to 8 with that boundary. Big gaps. Neck and gone. Big edge. And Monty takes that catch. After that boundary, a wicket falls of the Desire 7 Sports Vasco. It's 8 for 2. New man in, Raven Mutagi, aka Lup Lup. 8 for 2. In some sort of trouble at the moment. They Desire 7 Sports Vasco. Reverse sweep straight away. And good work by Naresh Naik. Just a single. Nicely played. Again, respecting the deliveries that are bowled by the bowlers, and Syed Buddy, hallmark of a really good batsman. When
You're presented with some good deliveries. Just try and nudge around, get the singles, and whenever a bad delivery has been bowled, attack on it. And that's what is being done. Reverse sweep, and this time it goes big. Behind point, and 6. Rajat Komarpant. 2 overs 16 for 2. Desire 7 Sports Vasco. Big match this. Kankona Titans taking on the Desire 7 Sports Vasco. Desire 7 Sports Vasco put into bed by the Kankona Titans. Rajat starts off in the air. Oh, just misguiding Babu Chauhan there. But no damage done, just a single taken. Nicely played. Fielder won't get there. Piercing the gap with perfection. Here's Revan Muthagi. Since he's back, he's been playing. Score moves to 21 with that boundary. As the slightly field has been changed. Man from again the reverse. This time down to back at a point. Will just be a single. Score moves to 22. Strange looking field this for Revan Muthagi. Shot third, shot fine. Man at mid-off and mid-on. Whereas the rest outside the 30-yard circle. Now slight change for Syed Badi. Goes big and that's 6. Flat as a tank from Syed Badi. Again, and now a maximum. Fabulous wicket this of the SSG ground, Fatorda. True to the bounce and pace. That's big again. In the air, fielder will take it easily. Was swirling a bit in the air. And that's gone.
Akash. After that dismissal of Syed Badi for 10, it's 28 for the loss of 3 wickets. Nicely swirled around, down to the wicket defense. Coming back for the second one, and will make it quite comfortably. Gets off the mark with those couple. Score moves to 30. After completion of 3 overs, it's 30. 30 for 3 after 3. Desire 7 Sports Vasco. A quick look at the innings of Desire 7 Sports Vasco, put into bed by the Kankhona Titans Kankhona after winning the toss. First over, just 3 runs, a wicket for Vinay Satarkar. Then 2 over 16 for the loss of 2. And now, after 3 overs, it's 30. Change in bowling, it will be Uday Sheth. Again, persisting with the same field for Revan Muthage. Knows that he is trying those agricultural strokes behind point, behind square. Why not get the downfielders in? Short delivery, and that will be wide. Extras. Score moves to 31. Talking about this field, man at 2 men behind him. Man at short third and short fine. The reverse. This time goes the other side. Very well bowled by the bowler. Following him. Whatever in his arc, he'll just go down swinging. Revan Muthage. Shimmy. And that shuffle just makes really good use to his team. That's 4. Score moves to 35 with that boundary. Just trying to cover the stumps and go on the offside. Using the crease to good effect. Bowler tried to follow him, but just couldn't quite. This time down the ground. Gaurav Sawant, Vinay Satarkar. Can't get there. And that's 4. Good batting this. Knows exactly where the fielders are. Both those men inside the 30-yard circle and placing between them. Revan Muthage gets another boundary. Score moves to 39 with that boundary. 4th over in progress. Again, slight change in the field. Now, man from covers is being brought inside the 30-yard circle. And man at mid-off has been sent to long off. Nicely played. Just worked around. Listen until Babu does any misfield. No. Will just be a single. Score moves to 40. Score moves to 40. Another exactly 8 deliveries left in this innings. 8 deliveries. What are they up to? The Desire 7 Sports Vasco. Nicely bowled. Will be coming back for the second. And will make it quite comfortably. Score moves to 42. The scorching heat. Players need to be a bit hydrated. Really good bowling. Just trying to follow the batsman. Bowled it to the stumps, and that's a leg by is given. 20 over. After completion of 4, it's 43. 43 for the loss of 3 wickets. Desire 7 Sports Vasco.
Winner of this game will be taking on the Umar Boys Vasco in quarter final 3. In case if you have joined just now, then this is Youth of Fathoda Season 1 All Goa Panchayat and Municipality level tennis ball cricket tournament here in Fathoda. Municipality level cricket tournament. In fact, municipality level leg this morning session. Group C match between Desire 7 Sports Vasco and Kankhona Titans Kankhona. Last over of the first innings of Desire 7 Sports, and it will be Saish. Last 6 deliveries. 43 for the loss of 3 in 4 overs. Let's see if last 6 deliveries can produce some bit of magic for the Desire 7 Sports Vasco. Or is it going to be the Kankhon Titans, as they have bossing this game, will continue to do so. Played down the ground, will be on the bounce to the fielder. Will just be a single, good return from the boundary rope. Right directly into the hands of the bowler. Single taken, score moves to 44. Final 5 deliveries left. Down the ground and oh, dropped. Easy chance has been put down by Akshay. Gets the fingertip. Just couldn't quite manage to hold on to it though. That's big. And that's all the way for half a dozen runs. Targeting the stumps and perishing is Saish. Score moves to 51 with that maximum for the Desire 7 Sports Vasco. In his arc and into the mid-wicket fence for a maximum. It's damaging the figures of Saish is Akash. Again, this time a full toss in the air though. And Akhil takes an easy chance. So Saish gets his man. He has the last laugh after being smacked for a maximum over mid-wicket fence. It's 51 for 4. Desire 7 Sports Vasco. New man in Dheeraj Yadav. So left-hander has replaced a left-hander. Final 2 deliveries left in this innings. 51 for the loss of 4. 51 for 4. The Desire 7 Sports Vasco. Down the ground, in the air, fielder takes it easily. Really good catch there by Uday. Another one gone. Again trying to get some quick runs for his team. Dheeraj Yadav is also gone without scoring. He's gone for a golden duck. It's 51 for 4. In fact 5. Half side done packing of the Desire 7 Sports Vasco. So new man in Asif facing the final delivery, and Saish Kamath will be on a hat-trick. Last delivery coming up. Syed Cricketers Shiroda
Mukesh got a hat-trick yesterday. Let's see if Saish Kamath can replicate the same. In the air, chance. Gaurav Sawant takes it easily. And that's the second hat-trick of this Youth of Fathoda Season 1. Saish Kamath gets the hat-trick for his team Kankona Titans. So the Kankona Titans will be requiring 52 in their 5 overs. So 52 will be required. Talking about the first innings of the Desire 7 Sports Vasco. टेस्ट धन्यवाद श्याम। बावन रनों का पीछा करेगी टीम कानकोन टाइटंस और फील्डिंग की सजावट में बिल्कुल डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को की टीम जो कि पूरे मैदान पर
पसरी हुई, फैली हुई गेंदबाजी में विशाल पहली गेंद हल्के से बाहर जाती हुई गेंद, कोई छेड़छाड़ नहीं खेलने की कोशिश की, हालांकि ये वहां पर सवाल पूछते हुए कि थोड़ी सी बाहर थी, मगर अंपायर की कोई प्रतिक्रिया नहीं। सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत, और बिल्कुल एक रोचक रोमांचक मैच होने की यहाँ पर पूरी संभावना। जिस प्रकार से 52 रन बनाकर अपने अब स्कोर को डिफेंड करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए टीम डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को, विशाल की गेंदबाजी फिर से एक बार हल्की से बाहर थी, हालांकि फेयर गेंद, फिर से एक बार हल्के से दिशाहीन गेंद, इस बार वाइड का इशारा आता हुआ। बिल्कुल एक्स्ट्रा की मदद यहाँ पर मिलती हुई। स्ट्राइक पर है साइश और अकील नॉन स्ट्राइक लाइन पर। फिर से एक बार वही कॉम्बिनेशन जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो कि काफी बढ़िया। बल्लेबाजों की अगर बात आती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी गहराई बल्लेबाज, कैच का मौका और पहले विकेट की सफलता। बिना कोई रन बनाए साइश वापस लौटते हुए, यानी कि कानकोन टाइटंस ने अपना पहला काफी महत्वपूर्ण विकेट खोया है। तुझे बांगडा घालता नरेश नाइक काफी अनुभवी गोवा पुलिस के खिलाड़ी और संभल कर बिल्कुल आत्मरक्षक तरीके से 1 रन के लिए ढकेल अपना खाता खोलते हुए। 1 नंबर के खिलाड़ी, बिल्कुल जर्सी नंबर भी बिल्कुल 1 नंबर उनके। काफी वर्षों से मेरे एक खासम खास मित्र। अगर कानकोन की बात की जाए तो कमेंट्री में संदीप पागी साहब और प्रवीण देसाई जो कि मनोरंजन का बादशाह। अगर खिलाड़ी की बात आती है तो निश्चित तौर पर संदेश और नरेश नाइक जो कि कानकोन सिटी से, जो कि गोवा राज्य का एक काफी खूबसूरत इलाका कानकोन, एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा माफी चाहूंगा। और इसी बीच लोअर फुल टॉस पे बढ़िया ड्राइव, इस बार देखना होगा अखिल केवल 1 रन पर ही संतुष्टि प्राप्त की उन्होंने। तो 10 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे कानकोन टाइटंस को अगर ये मैच को जीतना है तो। जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की, काफी कुछ निर्भर करेगा अकील पर। जिस प्रकार से पहली मैच में क्या शानदार बल्लेबाजी कर उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत दर्ज की, रिवर्स सिक्सर की बौछार की उन्होंने। और इसी बीच बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, मगर गेंद गई डीप फाइनल की दिशा में। वो इस बार काफी सुंदर दौड़, अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर यह आउट था, क्योंकि काफी बाहर थे नरेश नाइक। सुंदर रनिंग का मुजाहिरा इसी बीच। तो इसी के साथ 2 रन, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम कानकोन टाइटंस। हालांकि यहां पर एक विकेट की सफलता हालांकि मिल चुकी है टीम डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को के लिए, मगर और इसी बीच बिल्कुल बढ़िया शॉट, गगन चौमी छक्का नरेश नाइक के बल्ले से, सुंदर टाइमिंग से भरपूर, क्या ताकत क्या नजाकत, और गेंद को बिल्कुल मैदान के बाहर दे मारा है। तो इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर कानकोन टाइटंस लक्ष्य का पीछा करते हुए
52 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए। So this is absolutely going to be a cracker of a contest for sure. The way the team is chasing once again, looking in a great sublime form. Concon Titans against Desired 7 Sports Vasco. अब यहाँ पर देखने वाली बात है जबकि हालांकि स्वयं कप्तान गेंदबाजी में आए हैं, देखना होगा कि अपनी गेंदबाजी में किस प्रकार से वे बल्लेबाजों पर एक दबाव बनाएंगे। हालांकि 11 रन काफ़ी अच्छा स्कोर और उसी की दरकार लगभग 10-11 रन अगर बनाते चले जाएंगे कानकोन टाइटंस तो निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंचना उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। फिलहाल हमारे कॉम बॉक्स के सामने से मकबूल बोतल की गर्दन मरोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो फिलहाल सतीश यादव जो पिछले मैच के रहे थे हीरो, मैन ऑफ द मैच, तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छी बात की कि अच्छी टीम में मौका मिलना ही काफ़ी बड़ी बात है और मौके को का पूरा फ़ायदा उठाना बिल्कुल ये उनकी खासियत। सतीश यादव हल्की सी बदलाव, सैयद बदी उस जमा जो कि काफ़ी अनुभवी, और बदी को देखकर एक शेर मेरे जहन में आता है, तजुर्बे की भट्टी में तब कर जो निकलते हैं दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। बदी जैसा सिक्का बिल्कुल हर मैदान पर चलता हुआ। तो फिलहाल सतीश यादव अकेला स्ट्राइक पर, बिल्कुल इन पर भारी जिम्मेदारी नन्हे कंधों पर। पहली गेंद रिवर्स का प्रयोग, फिर से एक बार गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, देखना होगा कैच है या फिर 6। ओ आसिफ सिंह गुट्टी ने यहां पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया है और गेंद बिल्कुल मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अंग्रेजी में कहावत है लक फेवर्स द ब्रेव। अकील ने कोशिश की, हिम्मत की, क्योंकि हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। अगर मर्द करेगा हिम्मत तो बिल्कुल खुदा की मदद भी आएगी। उसी प्रकार से अकील रिवर्स का प्रयोग किया उन्होंने, हालांकि हिज हार्ट वाज इन द माउथ, मगर देखिए वहां पर क्या छूटा और 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 17 रनों पर, 17 रन। और यहां पर चेक करते हुए 4 है या फिर 6। Lineman, what is the signal, lineman? Is any lineman who is signaling boundary? He's showing boundary there. It's a boundary. So score now 15 after this boundary. Satish Yadav, watchful, good drive down the carpet towards the deep extra cover. A good pick up and throw, but in the meantime, once again, it's a square in the air. Third umpire.
Not out is the decision. He's safe. So good drag of the bat from Naresh Naik. एक फैसला उनके हक में, एक फैसला इनके हक में, 50-50। हालांकि यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रनोइंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाजवाब। एक दूसरे से कहते हुए दोनों ही बल्लेबाज भाग मिल्खा सिंह की तरह भाग, अकील और उनके साथ नरेश नाइक, एक नंबर खिलाड़ी, जर्सी नंबर भी बिल्कुल एक। सतीश यादव कप्तान गेंदबाजी में, पटकी हुई गेंद, इस बार रिवर्स का प्रयोग फिर से, इस बार वहां पर कोई गलती नहीं, सुंदर फील्डिंग के साथ नहीं बढ़िया थ्रो आसिफ सिंगनगुट्टी, इस बार कोई चूक नहीं। हालांकि एक कैच अगर ले लेते तो निश्चित तौर पर थोड़ा दबाव निश्चित तौर पर बनता कानकोन टाइटंस पर, मगर लक ने बिल्कुल बखूबी साथ दिया अकील का, जो रिवर्स के माहिर बल्लेबाज। और जब मैंने उनको मैन ऑफ द मैच के वक्त पूछा कि क्या आप सनम सालगांवकर को पहचानते, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नाम सुना है, बड़ा खिलाड़ी है बुडगेश्वर मापसा का, जिसे किंग ऑफ रिवर्स कहा जाता है गोवा के सरजमीन पर। मगर फिलहाल सुंदर गेंदबाजी का क्रम जारी, सतीश यादव बिल्कुल लाइन और लेंथ को ध्यान में रखकर बढ़िया गेंदबाजी, रनों को सीमित करने का प्रयास यहां पर बिल्कुल बखूबी होता हुआ सतीश यादव की ओर से। अफजल बिल्कुल काफी मेहनत करते हुए हमारे खास दोस्त, इसे बीच रिवर्स का प्रयोग, मगर बिल्कुल तोपी हुई गेंद ब्लॉक होल में। नरेश नाइक की कोशिश, मगर तारीफ करनी होगी सतीश यादव की, इस क्रंच सिचुएशन में जिस प्रकार से अपने आप को संतुलन बनाकर एक अच्छी गेंदबाजी अच्छी लाइन पर कर रहे हैं, मुश्किल में डालते हुए फिलहाल बल्लेबाजों को अपनी अच्छी गेंदबाजी के दम पर। फिर से एक बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, 2 रन की कोशिश, यहाँ पर जब तक गेंद को उठाकर हल्की सी फंबल वहां पर बसवराज मदार की ओर से, मगर कोई मौका नहीं। हालांकि थोड़ा सा गिर पड़े अकील, वरना अगर फुटिंग अच्छी होती तो निश्चित तौर पर 2 रन के लिए दौड़ पड़ते और 2 रन पूरे भी कर लेते, क्योंकि ये उनकी खासियत रही, अच्छी रनिंग का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। फिलहाल ओवर की समाप्ति 2, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो फिलहाल हमारे डीजे बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए, तो फिलहाल इट्स लंच टाइम, 19 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर साइश जो कि आउट होकर वापस पवेलियन लौटे हैं, उन्होंने अपना निजी स्कोर बनाया 0। विशाल की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर यह विकेट की सफलता, जो कि पहली ओवर में पहले विकेट कोई सफलता नहीं सतीश यादव को, हालांकि उन्होंने केवल 8 रन दिए हैं, मगर जिस प्रकार से उन्होंने नियंत्रण रखा, तो गेंदबाजी में गोवा के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जो गोवा पुलिस के लिए खेलते हैं, एर्नाकुलम एक्सप्रेस उनका नाम, विनोद विल्सन, जो कि राउंड विकेट के ओर से गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे उन्हीं के साथी गोवा पुलिस के नरेश नाइक। गोवा पुलिस वर्सेस गोवा पुलिस, दोनों ही गोवा पुलिस टीम को खेल चुके हैं, एक करंट खिलाड़ी दूसरा फॉर्मर। और बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, हालांकि हल्के से बल्ले का मिलाप जरूर हुआ, 2 रन की कोशिश यहाँ पर, अकील काफी तेज, मगर नरेश नाइक क्या अपनी बढ़ती उम्र के साथ अकील के साथ कम्पीट कर पाएंगे? मगर मैं कहूंगा कि तजुर्बा भी होना काफी जरूरी, काफी अनुभवी नरेश नाइक, और क्या है मजबूत टीम जो कि कानकोन से आई है, कानकोन टाइटंस। बिल्कुल संदेश जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी आते हैं कानकोन से, बड़ी दूर से आए हैं, क्रिकेट का तोहफा लेकर आए हैं कानकोन टाइटंस। इसी बीच मिक्सर, मगर गेंद बिल्कुल हवाई यात्रा पर भेज दिया है, abibu.com से डिस्पैच कर दिया है मैदान के बाहर 6 रन के लिए। हालांकि मिश्रण करने की कोशिश वहां पर, अगर मिश्रण की बात आती है, सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं विनोद विल्सन, कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से, कभी मीडियम पेस, काफी वेरिएशन रहती है इनकी गेंदबाजी में। उसके बावजूद देखिए टैलेंट, यंग टैलेंट मैं तो कहूंगा कानकोन से अकील अपना लोहा आजमाते हुए बिल्कुल एकमात्र बेहतरीन गेंद के साथ स्कोर 26 रन पर पहुंचता हुआ इस छक्के के साथ। और इस बार गेंद को शायद रोका जाएगा, गैप ढूंढ निकाला है, मगर फुटबॉल वहां पर क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल का नजारा, एफसी गोवा की बिल्कुल फुटिंग यहां पर नजर आई। और बिल्कुल मंदार राव देसाई जो कि मेरे खास दोस्त देख रहे होंगे मैच को, और बिल्कुल अपनी फुटबॉल मैच की याद कर रहे होंगे,
तो फिलहाल इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर जा पहुंचा है, जबकि 52 रनों का पीछा करती हुई टीम कानकोन टाइटंस। बिल्कुल फिर से एक बार एक योद्धा खिलाड़ी मैं तो कहूंगा अकील, वो इस बार सुंदर गेंद पूरी तरह से चारों खाने चित किया और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देखा अकील को देखकर बिल्कुल एक कहावत जो अंग्रेजी में वो मुझे याद आती हुई, when the going gets tough the tough gets going. He is a tough nut to crack for sure. Such a wonderful striker of the bat. Look at these young shoulders Akil, and huge responsibility on the shoulders. जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर से एक बार सफल होकर इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र में वहां पर बसवराज मदार, रविचंद्र अश्विन वास्को से बिल्कुल नियंत्रण काफी अच्छा कंट्रोल किया है विनोद विल्सन ने। उस 6 रन के बावजूद अपने बेसिक्स को याद रखकर सही गेंदबाजी है। हालांकि मेरा भी सौभाग्य रह चुका है, मैं उनके साथ खेला हूँ काफ़ी क्रिकेट, जो कि चिकाली मैदान पर, और मेरा काफ़ी सपोर्ट करते थे, काफ़ी गाइड करते थे विनोद विल्सन। राउंड विकेट, ओ बिल्कुल सही लाइन, जानते थे कि थोड़ा सफल होकर आगे को आएंगे, उसी को ध्यान में रखकर काफ़ी स्मार्ट गेंदबाजी। डॉट गेंद के साथ 3 ओवरों की समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर 52 रनों का पीछा करती हुई टीम कानकोन टाइटंस। असलम शेख को मेरी क्रिकेटिंग स्किल पे थोड़ा डाउट है, और मैं चाहूंगा असलम जब विनोद विल्सन मैदान के बाहर आए तो उनसे पूछ ले मेरे कारनामे। माइक पर तो मास्टर ब्लास्टर हुई क्रिकेट, अगर आप जानना चाहें तो विनोद विल्सन को पूछ सकते हैं। लेदर क्रिकेट में 107 रन बनाकर मैंने रचा था इतिहास। 107 इज माय हाईएस्ट स्कोरिंग टी। मगर मैं अब भी कहूंगा बसवराज मदार गेंदबाजी में, जो कि शुरुआत करेंगे 34 ओवर की। स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल 50-50 हो सकती है मैच। दोनों ही टीमें मजबूत टीमें, कांटे की टक्कर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खेल फिर से एक बार रिवर्स ब्लॉक होल में गेंद, सुंदर गेंदबाजी की शुरुआत। पहली गेंद पर बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद को रखा है, हालांकि मौका नहीं दिया। लेग बाय का इशारा आता हुआ पैर से टकराई गेंद। गेंद बल्लेबाज के कहीं से भी निकले, हेड से निकले, नाक की हड्डी तोड़ दे, कंधे की हड्डी तोड़ दे, फिर भी रन बनेंगे अगर उसे लेग बाय ही करा दिया जाएगा, न कि हेड बाय, न कि नोज बाय, न कि शोल्डर बाय। बिल्कुल अंपायर बल्लेबाज को एक लेग पीस के रूप में देखते हैं, और भरत अर्कस यहां पर चिकन पीस की तलाश में है। चिकन बिरयानी की काफी मजबूत खुशबू यहां पर कॉम बॉक्स में महकती हुई। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ाने का भी एक प्रयास यहां पर भरत अर्कस की ओर से, उनका साथ निभाते हुए मेरे को कमेंटेटर श्याम कलंगुटकर बिल्कुल पूरा मजा उठाते हुए बिरयानी का। फिलहाल फिर से अगर धीमी गति की गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक मजबूत गेंदबाजों की लिस्ट है डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को के खीमे में। उसके बावजूद देखिए एक बल्लेबाज जो सेल्फ बिलीफ के साथ जमकर टिका है, वो है अकील। अपने बलबूते पर मैच का रुख बदलने की क्षमता इस बल्लेबाज में, जिसे हमने देखा पहली मैच में बिल्कुल रिवर्स की बौछार कर दी छक्कों की। मगर क्या ही गेंदबाज, इस बार गेंद हवा में, कैच का मौका मुश्किल है मगर आसान बना सकते हैं खिलाड़ी। सुंदर कैच के साथ एक मजबूत खिलाड़ी अकील आउट। बिल्कुल जीत के रास्ते का कांटा बना था अकील, और क्या ही बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ नाक में दम कर रखा था गेंदबाजों के। मगर इस विकेट के साथ एक राहत की सांस निश्चित तौर पर लेगी टीम डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को। बड़ी मछली बिल्कुल जाल में फंसी है। विनेश 99 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर, दूसरे एक धुरंधर खिलाड़ी कानकोन टाइटंस से। हालांकि ये खासियत अकील की अपने बलबूते पर मैच को जिताकर ही लौटते हैं, मगर इस बार
एक मिस टाइमिंग के साथ अपना विकेट खो बैठे। 31 रन अभी भी दूर लक्ष्य से। 31 रन बने हैं और 21 रन की आवश्यकता। 52 का लक्ष्य और बसवराज मदार की तारीफ करनी होगी बिल्कुल जिस प्रकार से गेंदबाजी इस करंट सिचुएशन में, और काफी अनुभवी हुए भी गेंदबाज जानते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में किस प्रकार से अपने आप को एक संतुलन रख के गेंदबाजी की जाती है, वो कोई सीखे बसवराज मदार से। हालांकि यहां पर पैनिक के लिए कोई जगह नहीं। अगर जो खिलाड़ी जो टीम पैनिक होगी वो जीत से हाथ धोगी इस मैच में। सफल होकर इस पर बड़ा शॉट खेलेंगे फिराक में, सुंदर विकेट में वहां पर इस हड़बड़ाहट में बिल्कुल मौका तलाशा एक रन का। जिस प्रकार से शेर शिकार करते हैं एक प्लानिंग के साथ और भगदड़ मच जाती है, उसका पूरा फायदा शेर को मिलता है शिकार करने के लिए। उसी प्रकार से इस भगदड़ में बल्लेबाजों ने फायदा उठाया और एक रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 32 रनों पर। अब 8 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। नरेश नाइक स्ट्राइक पर, बसवराज मदार गेंदबाजी के क्रम में चौथी ओवर जा रही है। ओह बड़ा शॉट है ये, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद 4 रनों के लिए। सही वक्त पर एक चौका बटोरा है नरेश नाइक ने, स्कोर को पहुंचाया 36 रनों पर। बिल्कुल दोनों ही टीमों के बीच 36 का आंकड़ा और 7 गेंदों में अब 16 रनों की आवश्यकता। अब मंजिल दूर नहीं कानकोन टाइटंस खेलेंगे, पर इसी बीच एक गलती कर बैठे यहां पर। फिर से मैं एक बार वही कहूंगा मराठी में, चुकीला माफी नहीं। गलती की और खामियाजा भुगता बसवराज मदार ने और बेहतरीन टाइमिंग के साथ नरेश नाइक की गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो जब दो आपस में मजबूत टीमें भिड़ती हैं, इट्स टाइम फॉर द ग्रेटेस्ट एक्शन ऑन द ग्राउंड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर विटनेसिंग बिटवीन दीस टू टीम्स। व्हाट अ वंडरफुल फाइट एंड बोथ द टीम्स आर नॉट गोइंग डाउन विदाउट फाइट फॉर श्योर। कानकोन टाइटंस, बसवराज मदार्स लास्ट delivery of the second last over. Lot of adjustment in the field now. Vinod Wilson is slightly got upset with that, quickly changing the field by the ball. Boswaraj Madar is trying to ensure that the last ball is a dot and not a boundary. That's the reason he's making sure it has to be a tight line ball. Boswaraj Madar. Oh, lovely shot, finds the gap once again. The ball is racing up a couple of bounces to the fence. What a back-to-back boundaries from Naresh Naik. Absolutely, he's cutting loose and rising up to the occasion when the team needed the most. He's rising up and coming up with the flying colors, Naresh Naik. And this is exactly what I was talking about, the experience which matters, and that is exactly the experience which he has. And with the help of this boundary, score moves to 40 runs. And last over, 6 balls, 12 runs, what is required. 6 गेंदों में 12 रन। किस टीम के बचेंगे 12 और कौन सी टीम जाएगी घरा, यह देखना होगा इस ओवर के बाद। दोनों ही टीमें अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इस मैच को जीतने के लिए, दोनों ही मजबूत टीमें। अब नरेश नाइक ने अपने जिम्मेदारी ओढ़ ली है इस टीम की नैया पार कराने में, और देखना होगा कि आखिरी ओवर बिल्कुल इस गेंदबाज ने काफी धीरज यादव जो कि वास्को से आए हैं, शेर बहादुर यादव, सतीश यादव, अब धीरज यादव ने काफी सुंदर गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, काफी सारी गेंदें डॉट कराई थी। लेग कटर हैं और अगर लाइन पकड़ लें तो अच्छे से अच्छे गेंदबाज के छक्के छोड़ दे अपनी गेंदबाजी से, ये उनकी क्षमता। सिक्स बॉल्स 12 रन्स। विनेश स्ट्राइक पर 99 नंबर की जर्सी पहनकर, बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात विनोद विल्सन, सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन मिलेगा। 5 गेंदों में 11। बिल्कुल शफल होकर, टाइमिंग सुंदर थी मगर डायरेक्शन गलत था, जहां पर खिलाड़ी थी वहीं खेल दिया है विनेश ने। अगर गैप धूल निकालते तो निश्चित तौर पर चौका जरूर मिलता, मगर देखना होगा कि अब नरेश नाइक स्ट्राइक पर आ पहुंचे। ओ ये देखिए सुंदर लाइन वहां पर धीरज यादव की। 4 गेंदें 11, बिल्कुल अपनी गेंद पर नचाएंगे बल्लेबाजों को धीरज यादव।
गेंद हवा में, देखना होगा। धीरज ने कहा कि मेरा है, कैच ले लिया। सुंदर 2 डॉट गेंद है, उसके साथ एक महत्वपूर्ण विकेट है नरेश नाइक का, जो बिल्कुल लगातार चौके बटोर कर लक्ष्य आसान कर रहे थे। फिलहाल मिस टाइमिंग के साथ अपना विकेट खोया। इस प्रकार से कुल मिलाकर अब 3 विकेटें गिरी हैं कानकोन टाइटंस की। तो देखना होगा कि कौन धुरंधर बल्लेबाज अब आएगा मैदान पर। उदय 9 नंबर की जर्सी पहनकर, बिल्कुल टीम कानकोन टाइटंस चेन्नई सुपर किंग का शेर उनके टी शर्ट पर। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरी भी खास टीम वो है चेन्नई सुपर किंग। MS धोनी, मुझे तो लगता है उनसे बढ़कर कोई बढ़िया खिलाड़ी अब तक हिंदुस्तान को नहीं मिला। तो उदय जो कि 5वें नंबर पर मैदान पर उतरते हुए, 3 गेंदें बची हैं और 3 गेंदों में 11 रन जीत के लिए। अब मजबूत पकड़ बनाते हुए धीरज यादव की सुंदर गेंदबाजी। डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को एक कमबैक करती हुई 2 डॉट गेंदें। चौथी गेंद और डॉट कराई इस बार। अपील वहां पर, रन आउट का मौका आसान सा और उदय आउट। थर्ड अंपायर के लिए यहां पर कॉल, जो कि सदगिरी नाइक की ओर से इशारा, स्क्वायर इन द एयर। स्टंप आउट, स्टंप आउट, स्टंप आउट, नॉट रन आउट। अक्षय, एक अक्षय गोमतेश्वर मारगांव को, जिन्हें मैं अक्सर ये कहकर बुलाता हूं कि सीधे साधे अक्षय, न अमिताभ, न दिलीप कुमार, न किसी हीरो के बच्चे, वो हैं सीधे साधे अक्षय। और अक्षय कानकोन टाइटन से भी जो कि मैदान पर उतरते हुए, जबकि सभी चेन्नई सुपर किंग की पोशाक में और अक्षय मुंबई इंडियंस की पोशाक में मैदान पर उतरते हुए। गुप्तेश्वर के अक्षय, नॉटी अक्षय, सुबह आए थे, अपने दर्शन दिखा के चले गए। कहां से आते हैं कहां चले जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। नाम है अक्षय मगर दिखते हैं बिल्कुल अजय देवगन। अक्षय जोगले गुमटेश्वर मारगांव के। इतनी ताकत लाते कहां से हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं दुबले पतले से अक्षय। फिलहाल अक्षय स्ट्राइक पर कानकोन टाइटंस के, 2 गेंदों में 11 रन। और डॉट गेंद के साथ अब डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को केवल 1 कदम दूर जीत से। सुंदर गेंदबाजी धीरज यादव की इस ओवर ने बिल्कुल जीत आसान कर दी है डिजायर 7 स्पोर्ट्स के लिए। आखिरी गेंद पर 11 और मारा है छक्का। तो यह खासियत कानकोन टाइटंस की, हारेंगे मगर लड़कर, जज्बे के साथ। टफ लक फॉर कानकोन टाइटंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू डिजायर 7 स्पोर्ट्स वास्को। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, मैन ऑफ द मैच की ओर। तो जानते हैं हमारे स्कोरर से कौन है मैन ऑफ द मैच। So man of the match of the previous game is Revan Muthagi. A crucial 22 runs that he made all the difference. But that last over was superb. Superb last over, needing 12 runs, and he defended it
pretty nicely. So we'll have the presentation ceremony. We'll have Nadeem Ahmed, Goa's Goa's only international commentator, with us for the presentation ceremony, and Revan Mutagi will be awarded the man of the match trophy by him. Also, Revan Mutagi would like to share his award with Dheeraj Yadav. Dheeraj, if you can please come. Revan wants to share it with you as you bowled a superb last over. Dheeraj, if you can please come for a photograph as well. धीरज, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, 12 रन डिफेंड करने थे लास्ट ओवर में. विनय सतरकर भी थे अंदर, खेल रहे थे. क्या चल रहा था दिमाग में? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा दिखाने के लिए. और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना बेसिक्स जो मैंने सीखा है इतने साल वही कर रहा था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैंने. जी हाँ, अगर बैट्समैन दूसरे साइड में मार रहे हैं तो आप बॉल अंदर डाल के बाहर डाल रहे हो, बाहर ले जा रहे हो. क्या रेवलेशंस डाल रहे थे आप और क्या स्पीड्स आप बॉल कर रहे थे? देखो, क्रिकेट में बॉलर पेस तो वेरी करना ही है. अब मैं सब अगर सेम पेस पे डालूंगा तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाएगा. तो इसलिए मैं सोच के एवरी बॉल बहुत ही ज़्यादा मतलब थिंकिंग करके कि 1 रन या फिर